Good evening, everyone. Myself, Usumi Nayak, and I am the host for today's session. So, after a prosperous event, Yogotsav 2021, we, the Yoga Club of VSSUT family, are here again with a totally new and efficacious event, Sanjeevani, meaning the immortality of life. This 1 month event comprises various consultation sessions, competitions, and facts to teach us a way of healthy lifestyle. But its main cynosure is to honor and to salute our COVID warriors. Doctors, nurses, police, ambulance, motorists, ward boys, even the people who remove dirts, clean roadsides for healthy environment are also our frontline workers. Again, during this pandemic, as improved immunity, healthy lifestyle are on the main trending. So, to participate in the run of awareing people, we have made a small attempt today. Hope you all will enjoy this. Well, I feel extremely privileged and fortunate enough to extend my warm welcome to the Honorable Chief Guest of today's session, Dr. Sheikh Abdul Bari. Sir, you hardly need any introduction as you have made us all proud with your esteemed work in innumerable capacities. In addition to being an expert in medical science, Dr. Bari sir is a state level sports player also. Currently, Sir is running his own consultancy firm, Insignia. Sir is a man of distinct vision and a fountainhead of knowledge, experience, and inspiration to all of us. On behalf of the entire yoga family, I thank Sir for providing his gracious presence to join us today to enhance our jubilation. Now, I humbly invite Dr. Bari Sir to speak up a few words on today's program. Hello everybody. How are you all? We are fine, sir. So we find out. Okay. And I think ये हम लोग लेक्चर सेशन नहीं करके we will have an interaction session. That will be much better. What do you say? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. So you all are students, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. And now, as I told that we'll have a discussion on the current pandemic situation, that is COVID. So आप लोगों में से कोई ये बता सकता है कि एग्जैक्टली आप लोग क्या सोचते हो कोविड के बारे में? जस्ट 5 minutes हैव अ डिस्कशन कि एग्जैक्टली व्हाट इज कोविड एंड द सिचुएशन जो अभी चल रहा है, सो व्हाट यू पीपल थिंक रिगार्डिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन? Sir, according to me, actually, it's a retaliatory action from the nature to ओके, control the humans. Actually, we humans are the ones to be blamed. ओके, एनी अदर रीजन? एनीबॉडी एल्स दे थिंक इन अ डिफरेंट वे? Tell me, it's an interaction session. Don't be shy. Whatever you think, you just tell me. Shakti is writing in the chat, but in some cases, it is also bad for the good people who are having startups. Acha. Okay, Okay. fine. Actually, the thing is that when there is an action, always there is an opposite reaction. So right now, COVID is a action, and rest are the rest of the things are there, the reactions.
like financial situations, the startups, and the panic situation. Everything is a reaction, and the main action is going this COVID-19. Okay, so exactly what is COVID? Coronavirus. I think you all people know this pandemic is caused by a virus. एक वायरस है सिंपली. क्या है? कोरोना वायरस. ओके, हिंदी इंग्लिश ओडिया आप लोग किस इसमें कंफर्टेबल हो और एनीथिंग Anything, sir. एनीथिंग. चलो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके बताता हूँ. ओके, तो बेटर है हम लोग हिंदी में ही बात करें. इज इट ओके? Yes, sir. Yes. Yes, ओके, sir. चलो, एक्सीलेंट. एक्चुअली ये कोविड एक्चुअली है क्या? ये सिंपली एक वायरस है. और हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एग्जैक्टली नॉलेज कहाँ से लेते हैं? हम लोग सारा नॉलेज व्हाट्सएप से लेते हैं. और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों के लिए है. एक्चुअली हम लोग जितना पैनिक करते हैं उतना पैनिक करने का ये चीज है नहीं. कोविड में एक्चुअली होता क्या है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. एक वायरस बॉडी में एंटर करता है. जैसे कि नॉर्मली हम लोग को वायरल फीवर्स होते हैं, लेकिन ये वायरस थोड़ा से ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि हम लोग के रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि हम लोग इस वायरस को इतना पैनिक कर चुके हैं, इतना डर चुके हैं कि हम लोग उसका ट्रीटमेंट करने के जगह में हम लोग के दिमाग में एक सबसे बड़ा चीज आता है. पहला सवाल, अरे मेरे को कोविड हो गया, मेरा क्या होगा? नथिंग लाइक दैट. आप लोगों को वरी होने की जरूरत नहीं है. सबसे पहला चीज, ये एक वायरल अटैक है जो बॉडी पे होता है, जो नॉर्मली होता है. एंड ये सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है. रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करने की वजह से ये लंग्स में इसका मेन इन्फेक्शन होता है लंग्स में. और लंग्स की में इन्फेक्शन होने की वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, जो कि आगे चल के बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए. मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफली समझाता हूं कि एग्जैक्टली होता क्या है. हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है. और ये सारे आपने शायद आई थिंक स्कूल में पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन लंग्स में जाता है. वहां पे एयर सैक्स होते हैं जिसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं. और उस एल्वियोली में वो ब्लड कैपिलरीज के जरिए थ्रू से वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई होता है. और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से उसी एल्वियोली में आते हैं एंड वहां से हम लोग एक्सेल कर देते हैं. तो ये वेरी बेसिक थिंग है. कोरोना वायरस क्या करता है, जब वो इफेक्ट करता है तो वो सिंपली हम लोग को लंग्स को इफेक्ट करता है एंड एल्वियोली को में वो जाके बस जाता है, जो एयर शैक बोलते हैं. वहां पे इट कॉजेज द म्यूकस एंड सम सॉर्ट ऑफ फ्लूइड, जिसके वजह से वो एयर शैक बंद हो जाता है. और वहां पर हमारा जो एयर सैक है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है. दिस इज द सिंपल बेस जो आपका बेसिक है कोरोना वायरस का, ये यही है. बट बिकॉज ऑफ दैट इन्फेक्शन हमको फीवर होता है, हमको खांसी होता है एंड हमको फ्लू का सिम्टम्स आते हैं. एंड सबसे पहला चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप पहले तो इस चीज को लेके पैनिक बिल्कुल भी मत होना कि कोरोना हो गया है, क्या करें. आप कोरोना का वेरी बेसिक सिम्टम्स क्या है? आपका किसी को पहले सर्दी होता है, खांसी होता है, बुखार होता है, या ये जो सिचुएशन है रिवर्स भी हो सकता है. पहले टेम्परेचर आएगा,
क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन होता है बॉडी में टेम्परेचर आता ही है, सबसे पहला चीज। एंड सेकेंड थिंग है कि आपको जब भी आपके पास ये टेम्परेचर बॉडी में आपको आए, इमीडिएटली आप नेग्लेक्ट मत करो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर, नंबर वन थिंग। और वॉट एवर मेडिसिन आपको लेना है आप लो, एंड पैनिक मत करो। आप कभी भी हॉस्पिटल की तरफ मत भागो। हॉस्पिटलाइज कोरोना ट्रीटमेंट में हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज ध्यान से समझ लो कि जब तक आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो तब तक आपको हॉस्पिटल जाना नहीं है। एंड ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा सा बुखार होता है, कुछ भी होता है, लोग पैनिक करके हॉस्पिटल चले जाते हैं। एंड हॉस्पिटल में देयर आर अदर प्रॉब्लम्स, अदर डिजीजेस, अदर वायरसेस, अदर जर्म्स काफी सारे होते हैं जो बॉडी को इफेक्ट करते हैं। तो हम लोग को जरूरत भी नहीं है कि हम लोग हॉस्पिटल जाए। क्यों? क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा ऐसा चीज नहीं है कि हम इसको पैनिक करें। ठीक है? अच्छा, आई एम ऑडिबल टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, ओके फाइन। Yes, sir. सबसे पहला चीज है, आप अपने दिमाग से ये डर निकाल दो कि अगर कोरोना मुझे हो गया तो मैं क्या करूंगा। नो, सिंपल उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, अपना ट्रीटमेंट करो। नंबर वन, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, एडमिट होने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बोलते हैं हम लोग को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कब आता है, ऑक्सीजन लेवल कब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो लेटर ऑन स्टेज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि जब कोरोना वायरस को हम लोग इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और वो लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड निमोनिया। निमोनिया होता है लंग्स में। लंग्स में जो पैचेस होते हैं, जब लंग्स में एल्वियोली जो हमारा एयर सैक है, जब वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है, तब हम लोग को प्रॉब्लम आता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ऑक्सीजन का हम लोग का कम होने लगता है। एंड जब ऑक्सीजन कम होता है तो एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन चाहिए। और वो ऑक्सीजन कहां से आता है? थ्रू दिस लंग्स, वहां से एयर सैक, एयर सैक से कैपिलरी, कैपिलरी से ब्लड वेसल, ब्लड वेसल से एवरी ऑर्गन, फ्रॉम हेयर टू नेल, हर जगह में ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को। जब ये ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब बॉडी में अदर ऑर्गन्स भी ठीक से काम नहीं कर पाते। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हाइपोक्सिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म में हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ड्यू टू दैट। एंड सेकेंड थिंग है, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा? क्योंकि नॉर्मली आज हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर बच्चे घर में ही रहते हैं, वो लोग बाहर नहीं निकलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली पढ़ाई करते हैं, ट्यूशंस एंड मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स, एवरीवेयर वो लोग यही चीजों में घिरे रहते हैं। और दिन भर वो लोग या तो क्लासरूम में रहते हैं या घर में बैठे रहते हैं, बट वो बाहर निकलते नहीं हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है। एंड जहाँ तक आप लोग का सवाल है, आप लोग योगा क्लब से हो, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जिंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं छोड़ना, क्योंकि ये एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं एंड जो हेल्दी रहते हैं, वो लोग को कोरोना एज सच इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं करता है। अगर कोरोना होता भी है तो उनके बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। ये ऑक्सीजन लेवल का कम होना, ये सब चीजें नहीं होती हैं। और ये सारा स्पोर्ट्स, ये जो है स्पोर्ट्समैन लोगों के लिए बहुत जो स्पोर्ट्समैन है वो बहुत, स्पोर्ट्समैन एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, स्पोर्ट्स जो होता है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ के लिए। एंड मैंने अभी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी एक कोर्स किया हुआ है, सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ मैंने XIMB से। वहां पे भी हमें वही सिखाया जाता है। और हमने ये देखा है कि जब लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं वो काफी सारी बीमारियों से बच जाते हैं। हार्ट प्रॉब्लम नहीं आता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन,
इन सारी चीजों से स्पोर्ट्समैन बचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मसल्स होता है, उनके टिश्यूज होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं, वो हमेशा एक्सरसाइज की वजह से बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अभी कोविड के टाइम में आप लोग थोड़ा से घर से बाहर निकलो, भीड़ में मत जाओ, जहां पे खाली जगह है घर से, अपने रूम से बाहर निकलो। क्योंकि आप लोग स्कूल में पढ़े होगे, दिन के टाइम में, लाइक डे टाइम में, हम जितने पेड़ हैं, ट्रीज दे एमिट ऑक्सीजन, राइट? आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब चीजें, स्कूल में पढ़ा है ना आपने, Yes, sir. फोटोसिंथेसिस एंड ऑल। तो आप हमेशा कोशिश करो दिन में कम से कम 1 घंटा किसी पेड़ के नीचे छांव में खड़े हो, सो दैट क्या वहां से आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है जो कि आपको उस ट्री से एमिट होता है। शाम के टाइम में आप रात को से 7 बजे 8 बजे थोड़ा से आप बाहर निकल के खुले में स्पेंड 1 आवर अराउंड, एंड अर्ली मॉर्निंग स्पेंड 1 आवर। सो 3 to 4 आवर्स आप बाहर निकलो रूम से। अच्छा, आप लोग एक चीज है कि जब कभी भी किसी भीड़ जगह में, एक रूम में सपोज कहीं पे आपने पार्टी में गए हो, तो वहां पे 100-150 लोग हैं, एक हॉल है, कभी कभी आपने ये फील किया है, यू फील सफोकेटेड? आपको लगता है Yes, sir. सफोकेशन होता है? Yes, sir. क्यों होता है? वाई दिस सफोकेशन? क्योंकि वहां पे जितने भी लोग होते हैं ना, सब कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो नेचुरली वो ऑक्सीजन जो होता है ना रूम का, थोड़ा सा उसका कम हो जाता है। तो हम लोग जो लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, उसका क्वांटिटी कम हो जाता है। दैट्स वाई हम लोग को सफोकेशन लगता है। तो इसीलिए अभी भी आप घर में भी अकेले भी रहते हो ना, तो आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हो, तो मतलब आपका जो रूम का एयर है वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। सो वही कार्बन डाइऑक्साइड अगेन आप इनहेल कर रहे हो। तो इसीलिए सबसे पहला चीज है, घर को हमेशा खुला रखो। कम से कम घर से बाहर 3 से 4 घंटा आप स्पेंड करो। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, आपके घर में शाम के टाइम में थोड़ा खुले में बैठ के आप पढ़ाई कर लो, या दिन के टाइम में किसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा आप बैठ के पढ़ाई कर लो, या थोड़ा सा आप घूम लो। एंड सबसे बड़ा चीज है, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना ही है, मास्क लगाना। एंड हाँ, कोशिश करो जब आप अकेले में रहते हो, घर में रहते हो, मास्क यूज ना करो। बट कभी भी आप घर से निकलते हो, बी श्योर कि आप मास्क यूज करो, हाथों को सैनिटाइज करो, डिस्टेंस मेंटेन करो। ये जो कॉमन जो प्रोटोकॉल अभी गवर्नमेंट ने दिया है, इन सब चीजों को आप लोग फॉलो करो। एंड सबसे बड़ा चीज है, ये जो आजकल जो चलता है व्हाट्सएप में, बहुत सारे लोग बहुत सारा ज्ञान देने लगते हैं, बहुत सारा उसमें से फेक होता है। उन सब चीजों से आप दूर रहो। अगर आपको किसी चीज के बारे में, लाइक आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो पढ़ाई के बारे में अगर आपको पूछना है तो आप अपने टीचर से बात करोगे। आप किसी लेमैन से तो जाके बात नहीं करोगे, या आप किसी लेबर क्लास लोगों से बात नहीं करोगे। आप लोग अगर आप लोग आज के डेट में बीटेक पढ़ रहे हो, तो आप किसी डॉक्टर से जाके बीटेक का क्वेश्चन तो नहीं पूछोगे ना। सेम थिंग, अगर आपको मेडिकल रिलेटेड कुछ भी जानना है, प्रॉपरली मेडिकल ओरिएंटेड लोगों से ही आप बात करो। एंड ये व्हाट्सएप एंड ये जो आजकल न्यूज चल रहे हैं, या कोरोना में ऐसा हो जाता है, ये खा लो तो ये हो जाएगा, वो खा लो वो हो जाएगा, आप ये चीज खा लो, कोरोना आपको कभी छू नहीं सकता, इन सब चीजों से आप दूर रहो। एंड एंड पोस्ट कोरोना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वीकनेस का। आप लोग अपने इम्यूनिटी को बढ़ाओ। जो वीकनेस भी आता है, इट इज बिकॉज ऑफ योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में आप लोगों का जो खाने का चीज है, वो नॉर्मली हम लोग आजकल देखते हैं ज्यादातर फास्ट फूड एंड ये सब खाते हैं,
इन सब चीजों से आप थोड़ा सा भी दूर रहो, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से आपका इम्यूनिटी बढ़ता नहीं है, रादर कम हो जाता है। एंड ऑलवेज अपने दिमाग को कूल रखो, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना, किसी भी चीज पे पैनिक नहीं करना, डर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कोरोना इट्स अ डिजीज और ये ट्रीट भी होता है। ऐसा नहीं है कि जिसको कोरोना होता है उसका कुछ प्रॉब्लम हो जाता, नो। आप कोरोना को प्रॉपरली एक अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराओगे, आप आराम से 7 डेज के अंदर क्योर हो जाओगे, टू बी वेरी श्योर। और ये जो आप लोग आज डेथ, और एक सबसे बड़ा चीज मैं बता दे रहा हूँ, कोरोना में जो डेथ्स हो रहे हैं इट इज ऑफ कोमॉर्बिड केसेस। कोमॉर्बिड केसेस किसको बोलते हैं? जिनको दूसरा बीमारी होता है, जैसे किसी को हाई डायबिटीज है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी का किडनी प्रॉब्लम्स है, उन लोगों को कोरोना ज्यादा इफेक्ट करता है, बिकॉज उनका जो इम्यूनिटी होता है वो बहुत ही कम होता है, एंड दैट इज द रीजन उनको ज्यादा इफेक्ट होता है। एंड आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत करो। एंड ये चीज हर किसी तक एक चीज अब बात पहुंचाओ, पैनिक बिल्कुल नहीं करना। एंड ये एक टाइम है, हमको इसके साथ फाइट करना है और हम करेंगे। और हम फाइट तभी कर सकते हैं जब हम हेल्दी रहेंगे। टेक सम हेल्दी फूड्स लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये आप इंटेक करो। एंड एक्सरसाइज आप करो, कुछ देर आप बाहर फ्रेश एयर लो, एंड % यू विल बी स्टे फिट। अगर आप लोग कभी भी कोरोना के ऊपर वाला ना करे, कभी आपको हो, लेकिन कभी भी अगर ये सारी चीजें आप करते हो ना, अगर कभी इफेक्ट होते भी हो ना, इट विल बी माइल्ड इफेक्ट, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछो, या और कुछ जानना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। Thank you, sir, for your insightful words. It was really informative. So I think now we are ready to take up some questions and queries from the participants. So if you have any queries or questions, you can write it down in the chat box, or you can just unmute yourself. Yeah, you can ask me, you can unmute yourself and ask me directly. No issues. तो मतलब मैं ये समझूं कि आप लोगों को सब समझ में आ गया है। You don't have any queries? Sir, I have a question. Yeah, sure. Go ahead. Sir, why after getting vaccine also we have to must take precautions? Because nowadays the vaccine is not 100% tested. Okay, and in some cases it's not that in every cases, but in some cases we found that after vaccination also there is a chance of getting this coronavirus. So you take precaution, but after vaccination virus is not affect that much, because you find virus everywhere nowadays. So virus can go inside your body anytime, but after taking this vaccine it is, yeah, it may affect, but to very little, not to that that the intensity is not that vigorous as without vaccine what now you are seeing. But after vaccination it may be or may not be, that is not 100% sure. But if at all you will get the coronavirus, it will be a very mild effect. So better to take precaution. Okay, sir. Thank you so much, sir. Okay. Sir, what I should do if I have to care for a COVID positive family member? Pardon? Come again? Sir,
What I should do if I have to care for a COVID positive family member? First thing, you keep that person in an isolation room. Okay, don't, and only one person will allow to attend that patient. First of all, other people should not allow to um, uh, come in touch with that person. And if you are taking care of a person, you also try to avoid touching that person, going closer to that person, and you can take care of that person from a minimum distance, like 2 to 3 meters. And be sure about one thing: don't make that person realize that he has something, a very big issue. Okay, and keep that person psychologically active. No, no यार, आपको कुछ नहीं हुआ है, you will be all right. And ऐसा नहीं है कि आपको कोविड हो गया तो हम आपके पास जाएंगे नहीं, हम आपको दूर से ही एक रूम में छोड़ देंगे, एंड आपको हम जैसे वो बोलते हैं ना जेल में जैसे रख देते हैं, खाना ऐसे दे देंगे, नहीं ऐसा. डोंट डू ऑल दोस थिंग्स. आप आराम से अपना जो प्रोटोकॉल है, जैसे मास्क लगाना है, हाथ सैनिटाइज करना है, यू डू दैट. आप उनके साथ बात करो आराम से, एंड उनको गिव दैट पर्सन कि यस, नो, यू डोंट हैव टू पैनिक, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, वी आर देयर टू केयर अबाउट यू एंड ऑल. ये सारी चीजें जो है आप उनके साथ करो, एंड प्रॉपर मेडिकेशन के साथ उनको मेडिकल अटेंशन प्रॉपर मिलना चाहिए. मेक श्योर कि उनका जो भी मेडिसिन एंड डॉक्टर विजिट्स एंड एवरीथिंग, इट शुड बी प्रॉपर. एंड उनका जो भी है टाइम टू टाइम डॉक्टर आपको जैसे सजेस्ट करते हैं, उनका मेडिसिन, उनका हेल्थ मॉनिटर करना, टेम्परेचर मॉनिटर करना, यू डू दैट एवरीथिंग. बट हाँ, उनको सबसे पहला बात है कि साइकोलॉजिकली उनको आप सपोर्ट करोगे, क्योंकि जब आप उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट नहीं करते हो, क्योंकि आज के डेट में जितने डेथ्स हो रहे हैं कोरोना में, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल. मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूँ, क्योंकि देखो, नॉर्मली जब हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट जाता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उसको उसके घर वालों से मिलने नहीं दिया जाता. नंबर वन प्रॉब्लम. नंबर टू, जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो सिर्फ कोरोना पेशेंट्स ही देखता है. नंबर थ्री, वहां पे उसको दिखता है कि हाँ लोग मर रहे हैं, बट कॉज ऑफ डेथ इज व्हाट ही डोंट नो. सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि हम लोग होता है, एक आदमी को हाई डायबिटीज था, उसको कोरोना हो गया, वो डेथ कर गया, बट इस आदमी को ये पता चलता है कि नहीं वो तो कोरोना में चला गया, मैं भी चला जाऊंगा. ये जो साइकोलॉजी होता है ना, ये आपको आपके जो हेल्थ को ना बहुत जल्दी डिटोरिएट करता है. और आपके घर में अगर कोई पेशेंट है, अगर उनको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं है, तो मेक श्योर उनको घर में ही रखें, उनका प्रॉपर केयर लें, बस अपना प्रोटोकॉल फॉलो करें. इट विल बी प्रीटी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, प्रोटोकॉल फॉलो करना है आपको, जैसे मास्क लगाना एंड हाथ सैनिटाइज करना, कीप सम सोशल डिस्टेंस. उस पेशेंट को ये कभी भी फील होने मत दो कि वो अकेला है. ऑलवेज मेक दैट मीन्स रियलाइज दैट पर्सन कि वी आर विथ यू, यू डोंट हैव टू पैनिक, आप ठीक हो जाओगे. एंड आई एश्योर वो 90% वहीं पे ठीक हो जाता है, एंड बाकी 10% जो मेडिसिन आपका डॉक्टर्स प्रॉपर मेडिकेशन में रखते हैं, दैट इज एनफ. Thank you, sir. Sir, I have a question. Sir, Yeah. actually recently I got vaccinated. तो Okay. मतलब बहुत सारे दोस्त ऐसे पूछते हैं कि कौन सा वैक्सीन लिया, कौन सा बेटर है दोनों में से, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, क्योंकि कोविशील्ड में सिम्टम्स दिखाई दे रहा है. तो सर वही क्वेश्चन है कि मतलब दोनों में कौन सा बेटर है, या फिर जो भी मिलता है अवेलेबल है ले लेना चाहिए. नहीं देखो, आपके एरियाज में हर एरिया में अलग अलग वैक्सीन अवेलेबल है. कहीं पे कोवैक्सीन अवेलेबल है, कहीं पे कोविशील्ड अवेलेबल है. कुछ कुछ एरियाज में दोनों मिलते हैं, बट बहुत रेयर केसेस में मिलते हैं. वैसा कुछ नहीं है, दोनों वैक्सीन अपने अपने जगह पे ठीक है.
हाँ, कोविशील्ड में थोड़ा सा आपको फीवर उबर आता है कभी कभी, एंड वैसे उसमें कोई पैनिक करने का नहीं है, दोनों दोनों वैक्सीन अपने जगह पे सही है, तो इसलिए कोई भी मेडिसिन कोई भी वैक्सीन आप ले सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। Good evening, sir. या गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। So, I have a question that nowadays we are going through many crises. So, what is your opinion on such crises and how we can resolve it? Means regarding this crisis of financial and everything, or Regarding medical this crisis. COVID pandemic situation, as per your regards, like you are in a doctor profession, so what are the crises we are facing and your opinions, like how we can resolve it? Okay, regarding you are asking me regarding this only regarding health issues of COVID, or overall general issues like this financial crisis and everything, overall crisis. Like sir, overall crisis, but you can just give your opinion on health related also. Okay, regarding health related, first of all, previously I have also told that you have to keep yourself fit and healthy. How can you keep yourself healthy? That means if you don't have any disease, that doesn't mean that you are healthy. Healthy means if you are taking proper food, if you are doing proper exercise, then only you can keep yourself healthy. And nowadays, we are very much friendly with gadgets, and I think we spend almost uh, 5 to 10 hours with our gadgets like laptop, mobile, TV, and everything. But exactly these gadgets, they give an adverse effect on our mind and body, right? And as you all are students, you can correlate that this ultraviolet ray that emit from these gadgets, that affects a lot in your brain, in your body, and everywhere. So you can when you are not required, don't use that these gadgets, number one. And whenever you get time, go for some exercise, find out time, say 1 hour, 2 hours, do some exercise, stay yourself fit. And third thing, have some healthy foods and stay away from junk foods. And these junk foods is creating a lot of problem inside our body. Okay, healthy foods like you can have some proteins, vitamins, minerals, and these are the things you have to take. And overall, now as it's a pandemic situation, you have to wait for next couple of months to see whether how government is tackling the situation, because we can give some contribution to the economical situation, but we can't change the economical situation alone. We need some startup, and you can have some startups. You can plan some startups. You can plan some something. As you are all are students, you can plan for your future that okay, if I will not get a job, what I will do, how can I survive, and I can have start a small business, and I can develop my skill. Say somebody has an software skill, somebody has an hardware skill, somebody has an designing skill or anything. You Everybody has some sort of skill with their in within them. So you have to develop, you have to develop, you have to find out that what skill I have, and you have to develop those skills, and those skills which help to contribute to your life and to the country. And now you have to wait for a couple of months to see
exactly what government is doing right now. So we can do in that way. Yes, sir. Sir, And there sir, are a just few. something to Okay. 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 something Ask. to add on, like Swami Ramdev is giving some nuskas to drink below kada, like that you can suggest some tips or nuskas that we can use in our home. Like the best thing is tulsi. Number one, you can do. सबसे अच्छा चीज आप लोगों के घर में वी फाउंड एवरीवेयर लौंग है, ठीक है, क्लोव, लौंग जिसको बोलते हैं क्लोव, देन वी हैव गोल मिर्चा है, तेज पत्ता, देन वी हैव तुलसी पत्ता एंड थोड़ा से जीरा जो होता है, जीरा मालूम है, जीरा घर में। हाँ Yes, सर, sir. हाँ सर। हाँ, इन सब चीजों को आप एक गिलास पानी में उसको डाल दो एंड बॉयल इट जब तक कि वो पानी आधा गिलास ना हो जाए, एंड टेक इट। क्योंकि हम लोग जो भी मेडिसिन यूज करते हैं वो सारे मेडिसिन जो है ना वो यहीं से आते हैं, दीज आर नेचुरल मेडिसिन, ठीक है। तो एंड मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, एवरी डे हैव 2 to 3 लीव्स ऑफ तुलसी, कच्चा आप मुंह में डालो और खा लो, एंड वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को पूरी तरह से क्लियर करके रखेगा। एंड पुदीना पत्ता आता है, यू कैन हैव 2 or 3 लीव्स उसके भी, जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को बहुत क्लियर करता है। ये दो चीजें आप रेगुलर यूज करो, क्योंकि हम लोग नॉर्मली तुलसी के पेड़ को यूज करते पूजा करने के लिए, और तुलसी के बहुत सारे मेडिसिनल ये भी हैं। और तुलसी का पत्ता आप अगर रोज खाते हो, ज्यादा नहीं, 2 या 3 लीफ, आपके बॉडी के आधा सिस्टम, 50% सिस्टम है ना, वो बहुत अच्छा काम करेगा, एंड इट्स अ नेचुरल मेडिसिन। ओके, ओके सर, थैंक यू। Thank you, sir. Sir, there are questions in the chat box. Sir, Ritik has asked, sir, recently the number of days between the first and second doses of vaccine has been increased. Why and what's the reason behind it? exactly, the research is going on for this vaccine, and I think there are first of all it was 28 days, now it is 45 days, now it again come to 60 days, because COVID is just 1 year old, and all the researches are going on, and in near future you will find more such kind of results. And I think in few days or a month or 2 months you'll find that vaccine comes. Okay, you have to just take 1 dose, no second dose needed. So in this aspect, it is just 1 year baby, you can say. So the research is going on now. Nobody is sure about this COVID-19 disease, because firstly जब पहले आया था, उसी people say okay, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन स्टार्ट कर दो एंड द पेशेंट विल बी ओके। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काम नहीं किया, देन अगेन द थिंग कम्स प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी वाज फेल्ड, देन इस तरह का, these are the things they are going in a hit and trial method. Now the best thing is that antibiotics is working very well. Now the doctors getting very good results with antibiotics and all, and the research is going on, and I think within next few days it will be okay, everything will be okay, and I think 1 dose of vaccine will be enough after few days. So the research is going on, so there are and more changes will come in next near future. Okay, sir. Sir, Smriti is asking, can you tell us something about black fungus? Okay, It's in the black. news. Yes, now this black fungus is very much the hot topic in the WhatsApp, right?
Actually, black fungus is it is just a fungus. We have so many fungal infection. आपने देखा होगा घर में जब लेडीज लोग भी काम करते हैं तो उनके पैर में पानी लग लग के व्हाइट व्हाइट पैचेस हो जाते हैं. दैट इज अ फंगल इन्फेक्शन. हमारे बॉडी में काफी सारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे ओरल थ्रस होते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं. दोज आर ऑल्सो फंगल इन्फेक्शन. बट ये जो ब्लैक फंगस है, ये जो अभी तक का जो रिसर्च बता रहा है, बिकॉज ये अभी जस्ट 1 मंथ बैक ये स्टार्ट हुआ है. एंड ये ब्लैक फंगस एक्चुअली फंगस ग्रो कहाँ करता है, दैट इज मॉइस्ट एरिया में मोस्टली फंगल ग्रोथ होता है. तो ये जो ब्लैक फंगस है, ये एक दिस फंगस, इसका जो रूट है, इट इट गोज वेरी डीप. जो अदर फंगल इन्फेक्शन जो लोकल रहता है, तो ये बहुत ज्यादा डीप रूटेड है फंगल इन्फेक्शन. तो जिसके वजह से बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम्स, ये बॉडी को ज्यादा वीक कर दे रहा है. एंड अभी तक भी इसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है, बट अभी तक ऐसा कोई भी केसेस नहीं आया है कि ब्लैक फंगस की वजह से इतना ज्यादा मतलब पैनिक सिचुएशन हो या मतलब डेथ हो या ऐसा वैसा कुछ अभी तक आया नहीं है. मैंने भी रिसेंटली अभी 15 डेज बैक एक रिसर्च में देख रहा था कि अभी तक भी ये ऐसा पैनिक सिचुएशन पे है नहीं. इट इज वेरी विद इन अंडर कंट्रोल. कुछ एरियाज में एंड पर्टिकुलर कुछ लोगों में ये पाया जा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इम्यूनिटी जिसका बहुत ज्यादा कम होता है, वहां पे ये ब्लैक फंगस का प्रॉब्लम आ रहा है. अभी रिसेंटली देखा था, बट अभी इसके ऊपर और रिसर्च चल रहा है. शायद होपफुली नेक्स्ट 15 डेज 1 मंथ के अंदर आ जाएगा. अभी तक उतने ज्यादा केसेस तो है नहीं इंडिया में, few cases हैं, but scientists are they are doing the research. Let us see within next 15 days what comes. But black fungus के ऊपर इतना पैनिक होने का जरूरत नहीं है. आप लोग इतना ज्यादा उसको डरो मत. ब्लैक फंगस कोई बहुत बना ऐसा कोई डेंजरस चीज नहीं है अभी तक जो रिसर्च बता रहा है. ओके. Sir, Manoj is asking, Yeah. is it possible that a person cured from COVID can get infected again? May be possible, but second time if here get that COVID, क्योंकि number one thing, whenever we get a disease, body will create antibodies automatically. So in COVID cases also antibodies develop होता है, but it takes some time, 1 month or so. So second time COVID हो सकता है, maybe. बट मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द केसेस होता नहीं है. बट कुछ कुछ केसेस में जिनका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होता है, वहां पे कोविड सेकेंड टाइम भी अटैक करता है. जिनका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होता है, क्योंकि उनके बॉडी में एंटीबॉडीज बनना सही से बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से सेकेंड टाइम भी हो सकता है. Thank you, sir. We are extremely privileged to have Dr. Sheikh Abdul Bari among us today. His words have truly enlightened us, and in order to make this session more memorable, we are hereby presenting a token of love from our side. Thank you I very would much. now like to call Adhyashri to take over and recite a poem to express our regards to our honorable guest of honor. Management is doing things right and leadership is doing right things. Both these skills together are not found in many, but one such person is amidst us today who's really brainy. Currently a medical practitioner, but of his college times, he was an eminent sports player. Being a state level sports player and a BHMS graduate, he has managed it all so well. This is something we all should learn from him in order to excel. He is a guide, a mentor for all of us to live a healthy life and to be prosperous. जैसे किसी भी परीक्षा में विफल होने के बावजूद हमारी कोशिश होती है जारी, इसी बात को उनके लफ्जों में बयां करने के लिए और हमें समझाने के लिए मौजूद है हमारे बीच सर शेख अब्दुल बारी. थैंक यू. Thank you very much.
Stay Now I safe, would like stay fit, to stay re- healthy. Now I would like to request Deepam Jyoti Sahu to present a memento to felicitate our guest. Thank you very much. We express our hearty gratitude to you for sparing some of your valuable time and attending our virtual event Sanjeevani. Your insightful words inspired us and we wish you all the best in your future endeavors. Regards, Yoga Club VSSUT. Thank you very much. Now I would request Jeevan Bhaiya to extend the vote of thanks. Good evening, everyone. Now that we are at the end of this session, on behalf of the entire yoga family, I extend my thanks to the respected guest of honor of the evening, Dr. Sheikh Abdul Bari sir, who spared time from his busy schedule to grace the occasion with his presence and shared valuable information on health and wellness in COVID times. We got to learn a lot from your talk and we will surely inculcate in our daily lives. Thank you so much, sir. This session was smoothly conducted because of a dedicated team, and I am glad to be a part of such proactive team who have immense dedication and zeal to work. I would like to thank our Assistant Secretary Ayushi Swain Didi. Without her guidance, this session wouldn't have been possible. Lastly, I would thank all the participants who joined us in this session and made it successful. Thanks for joining. Stay tuned for more such sessions in the future. Thank you. Stay safe. Stay happy. With this, we conclude our today's session. Thank you. Thank you very much.